آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج اس لمحے کے لیے، اس ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا اور آج یہ فضل جس کے خوبصورت کلام کو سن سکے، اس بادشاہ کے بادشاہ کی عید میں شامل ہو سکے. تو آئیے سبھی اس بادشاہ کے لیے جو یروشلم کے اندر آ چکا ہے زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے کیونکہ بھائی کے دو جہاں قدرت کا خدا وہ جو بادشاہ ہے اس کو کلام فرماتے ہیں کہ شکر کرتے کے بھاگ میں اور حمد کرتے کی بارگاہ میں داخل ہو. ہاللویا ہاللویا. آج پوری دنیا میں جو ہے یسوع کی ایک ایسی عید منائی جاتی ہے جب یسوع ناصری یروشلم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کی استقبال کے لیے نکلتے ہیں، اس کو ویلکم کرنے کے لیے نکلتے ہیں. جیسے آج ہم سب نے ایک جلوس لے کر ہے باہر سے لے کر اندر تک، تو خدا کی اس بات کے لیے ہم شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری نگہبانی کی، حفاظت کی، رہنمائی کی، تو خدا کے شکرگزار ہیں. ہاللویا. بہت سے ہمارے عزیز و کار جو ہیں آج ہمارے ساتھ اس عید میں شامل نہیں. ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار خدا میں سو چکے ہیں، لیکن آپ سبھی لوگ جتنے بھی ہیں مبارک لوگ. کیا ہو گیا جی؟ مبارک لوگ. کیونکہ خدا کا کلام فرماتے ہیں کہ جو عید میں شامل تھے وہ بڑے جوش و خروش سے اس بات کی آگاہی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہوشیانہ ہوشیانہ، مبارک ہے جو خدا کے نام سے. میں کہوں گا ہوشیانہ ہوشیانہ، کہنا مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے. ہوشیانہ ہوشیانہ، ہوشیانہ ہوشیانہ، ہوشیانہ ہوشیانہ. اپنی آواز بہت آپ کی کام. ہوشیانہ ہوشیانہ ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے. اس بات کے لیے خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں. اور یہ جو پیشن گوئی ہے اس بات کی، یہ جو ہم نے ہوشیانہ کے نعرے لگائے، یہ پیشن گوئی خدا کے زندگی بس کلام مقدس میں ہمیں ذکریہ کی کتاب میں ملتا ہے. تو آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب، اور آج اس کی 12 آیت سے ہم اس خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے، اس بات کو سیکھیں گے، اس بات کو جانیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے آج ہمیں کیا تربیت کرتا ہے. کلام حق کا پڑھنا شروع کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین. دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا لکھا ہے کہ اے صہیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے. اس کے شاگرد پہلے یہ باتیں نہ سمجھے، اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا. اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے. انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے. بس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم میں سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیروکار ہو چلا. آمین آمین. اس کلام کا پڑھا اور سنا جائے. ہم سب اپنے بھائی سے برکت ہو. اب اس وقت بڑی خاص باتیں جو ہوئی ہے، سب سے پہلی بات کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ یسوع کو کیوں اس جگہ پر ویلکم کیا جا رہا ہے. جب لوگوں نے یہ گواہی سنی، یہ وہی یسوع ناصری ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا،
तब लोग जो है वो खजूरों की डालियां लेकर अपने कपड़े उतार कर उन्होंने रास्तों में बिछा दिए और खुदावंद यीशु नासरी का जो है इस्तेमाल किया, उन्होंने वेलकम किया खजूरों की डालियों के साथ। इस बात से फरीसी जो थे बहुत परेशान थे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई भी बादशाह जंग के लिए जाता तो वो घोड़ों का इस्तेमाल करता, अगर बहुत ज्यादा अमीर बादशाह था तो वो हाथी का इस्तेमाल करता जंग लड़ने के लिए, और कोई बादशाह जंग नहीं लड़ना चाहता था तो वो जो है गधे का इस्तेमाल करता। गधा जो है इस बात की निशानी है कि जो है सुलह सलामती का पैगाम लेकर जब गधा बादशाह गधे के ऊपर जाता था तो सुलह सलामती का क्या मिलता था? पैगाम मिलता था। तो मेरे अजीजों, जब उन्होंने यीशु नासरी को देखा गधे के ऊपर बैठा हुआ तो जान के कि जो रूमी हुकूमत जो हमारे ऊपर कब्जा करके बैठी हुए हैं, आज हम इससे क्या होंगे? आजाद हो जाएंगे, रोमी हुकूमत से आजाद हो जाएंगे। तो बहुत से यहूदी जो थे इस बात से दंग हो गए, उन परेशान हो गए कि ये ऐसा है जो अमन का भी पैगाम लेकर और लोग जो है इसको वेलकम करने के लिए नारे लगा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खजूरों की डालियों के साथ अपने कपड़े बिछा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये जब सब बातें हो रही तो बहुत से लोग परेशान और खुदा का कलाम फरमाते हैं ईद के लिए हजारों लोग बल्कि लाखों लोग हैं और यरूशलेम के अंदर आ मौजूद होते। जब उन तमाम लोगों ने इस बात को सुना, इस बात को देखा, जाना, तो बहुत से लोग जो थे आपस में ये गुफ्तगू करते थे, ये कौन सा बात ऐसा अमन का पैगाम लेकर आया है। और बहुत से लोगों ने बोला, इकरार किया, ये वही बादशाह है जिसके इख्तियार के अंदर मौत भी है और जिंदगी भी है, जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहा कि लाजर कब्र से बाहर निकला। ये वो बादशाह है, ये वो बादशाह है। इसलिए तो लोग जो है इसके इस्तेमाल को निकले खजूरों की डालियों के साथ। तो मेरे अजीजों, लोगों की सोच यहाँ तक होती थी, फरीसियों की, यहूदियों की, जो इंसान की रूह है वो 3 दिन तक जो है ना जमीन पर सैर करती है। इस बात को खत्म करने के लिए यीशु ने जो है 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। अभी हमने तलावत में सुना है, खुदा के कलाम से सुना है कि लोगों ने ये दुआ की और इस दुआ के इर्द जो है लोग लाखों की तादाद में यरूशलेम के अंदर आते हैं और यीशु का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं और नारा लगाते हैं। कौन सा नारा लगाते हैं? होशियाना 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 के नाम से आता है। तो मेरे अजीजों, यीशु नासरी ना कि खुद आया बल्कि उसके बाप ने उसको इस दुनिया में भेजा, क्योंकि वो सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आया। मेरे अजीजों, इस दौर के अंदर 2 बादशाह इस जगह पर मौजूद थे, लेकिन हेरोदिस बादशाह और खुदा का कलाम फरमाते हैं कि यीशु भी इस जगह पर मौजूद था, लेकिन यीशु की इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा लोग उस जगह पर निकले। तो मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा कि जब बादशाह लड़ने के लिए आते हैं, जब बादशाह फौज की तैयारी करते हैं तो करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों की सोच, लोगों के ख्यालात यीशु ने बंद कर दिए जब अमन का पैगाम लेकर आया। और लादू के बच्चे को मुराद है गधे के छोटे बच्चे के ऊपर, जिस पर अभी तक कोई भी नहीं बैठा। खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु नासरी उस जगह पर आ पहुंचा। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, मत्ती की अंजील हम निकालेंगे, उसका 21 बाब देखेंगे और उसकी 21 बाब से लेकर पहली आयत से 11 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील मेरे साथ निकालिए, 21 बाब निकालिए, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब। खुदा का कलाम शारा अंजील के अंदर हमें यह पैगाम देता है। इस जगह पर खुदा के सलामत मुकद्दस में हमें बहुत खूबसूरत बातें मिलती है, लिखी मिलती है। तो एल्डर रफीक जो है इस कलाम में रहनुमाई करेगा। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और ज़ैतून पहाड़ पर बहते फगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ
वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। अब देखिए यीशु नासरी ने अपने शिगिर्दों को यह पैगाम दिया कि तुम किस जगह पर जाओ, सामने के एक गांव जाओ और उस जगह पर पहुंचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? एक गधी और उसका बच्चा उसके साथ बांधा हुआ मिलेगा। और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु नासरी कहता है, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम इसे क्यों रहे हो, तो खुदा ने कहा कि तुम उनसे ये बात कहना कि खुदा उनको उनकी क्या है जी? जरूरत है। जी आगे देखिए। और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फी अलफूल उन्हें बेच देगा। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। हालेलुया। अब देखिए ये पेशेंट गोई जो है, खुदा ने यीशु नासरी के बारे में नबियों ने पहली हजारों साल पहले काटी और इस जगह पर लिखा कि देख तेरा बादशाह आएगा और कैसे आएगा? गधे पर सवार होकर आएगा। किसी पर? गधे पर सवार होकर आएगा, क्योंकि वो क्या है जी? हलीम है, वो अमन का बानी है, वो कामिल खुदा है, वो रास्तबाज है। उसके बोलने से समुद्र थम जाते हैं, उसके बोलने से लंगड़े चलने हो जाते हैं, उसके बोलने से अंधों की आंखें खुल जाती है। वो अमन का पैगाम लेकर आएगा, क्योंकि वो सुलह और सलामती क्या क्या है? शहजादा है। से बोलेंगे सुलह सलामती का क्या है? सुलह सलामती का क्या है? शहजादा। और मेरे अजीजों, कोई जंग के नहीं आया। जब उस शख्स ने कहा तो अभी देखो उसी वक्त उसको पाक में छू लिया और उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने जानवर उस आदमी को नहीं दूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि खुदा को इनकी जरूरत है, तो वो क्या करते हैं? खामोशी के साथ जो है वो उस गधे और गधी को साथ बेच देते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम इस बात को सीख रहे हैं, हम इस बात को जान रहे हैं कि मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद सुलह सलामती का क्या है जी? शहजादा है। सुलह सलामती का क्या है जी? शहजादा है। सुलह सलामती का क्या है जी? जब सुलह सलामती जिंदगी में आ जाती है तो हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। आगे जी। और जब शिगिर्दों ने जाना, और शिगिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में बिछाई। अब जो खजूर की डालियां है ना, ये भी अमन का पैगाम है, ये भी सलामती की निशानी है, ये भी सुलह का पैगाम। अब देखिए जगह पर लिखा है, यूहन्ना की अंजील में हमने देखा, उस जगह पर लिखा है खजूर की डालियां, और जगह पर लिखा है बहुत सी डालियां जो है लोगों ने क्या की? रास्ते में बखेर दी। क्योंकि अमन का बानी, कामिल करने वाला खुदा मेरा और आपका यीशु नासरी जब जा रहा था, पर भी लिखा है कि लोगों ने क्या किया? अपने कपड़े उतार कर रास्ते में बिखा दिया, बछेड़ दिए। और इस जगह पर लिखा है कि फिर वही उन्होंने नारा लगाया, इब्ने दौद को होशियाना मुबारक है जो खुदा के नाम पर आता है। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे यरूशलेम जो क्या हो गया? हिल गया। क्या हो गया जी? हिल गया। अब जब यरूशलेम नारों के साथ हिल रहा है तो खुदा का कलाम फरमाते हैं कि बहुत से फकीर फरीसी जो उससे हसद रखते थे, बहुत से जो जेलस करते थे, तो वो क्या कहते हैं कि उस्ताद अपने शिगिर्दों को क्या कहे? खामोश है। क्या कहे? खामोश है। तो यीशु ने कहा कि अगर आज ये खामोश रहेंगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह दी जय। बोलो खुदा यीशु मसीह दी जय। बोलो खुदा यीशु मसीह दी जय। तो मेरे अजीजों, जब हम रूह के साथ, दलेरी के साथ खुदा का काम करते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। जब मेरे अजीजों, यरूशलेम के अंदर जब बादशाह दाखिल होता है तो खुदा के कलाम मुकद्दस में हमें खूबसूरत हवाला नजर आता है। चारों अनाजील के अंदर बेशक मुख्तलिफ खुदा के पाक की हिदायत के मुताबिक
नबियों ने लिखा। मरकज की इंजील उसका 11 और उसकी पहली 11 आयत से भी मिलता है। लूका की इंजील उसका 19 बाब 28 से 40 आयत तक। यूहन्ना की इंजील उसका 12 और उसकी 13 से 19 आयत तक हमने देखा कि खुदा के लोग जो है खुदा का इस्तकबाल करते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरा यीशु जो है वो अमन का बाग है, कामिल करने वाला खुदा है। तो मेरे अजीजों, जब हम दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उसके काम को करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में शादमानी आती है। हालेलुया। क्या आती है जी? शादमानी आती है। तो हमारा खुदा जो है वो अमन लेकर आया, ना कि वो लड़ाई झगड़ा लेकर आया। बहुत से बादशाह आए, बहुत से नबी पैगंबर आए, बहुत से रसूल आए, उन्होंने क्या किया? उन लड़ाई झगड़े की, उन लोगों को कत्ल किया, उड़ा दिया। जैसे दाऊद और सौल के बारे में लिखा है कि बहुत सी औरतें जो हैं, जब यरूशलेम के अंदर दाऊद बादशाह भी दाखिल होते हैं तो वो भी उसके इस्तकबाल को निकलते हैं और वो ये नारा लगाते हैं। वो पता कौन सा नारा लगाते हैं? वो नारा लगाते हैं कि सौल ने तो मारा हजारों, दाऊद ने मारा लाखों को। वो अपनी जुबान से ये बात का इकरार करते हैं कि हमारे बादशाह ने लाखों को मारा। और आज हम जिस बादशाह की ईद मनाने वाले हैं, उसने तो बल्कि मरे हुए को क्या किया? आपकी आवाज कम। उसने तो मरे हुए को क्या किया? मरे किया, जिंदा कर दिया। और दूसरे बादशाह ने क्या किया? जिंदा लोगों को मार दिया। जिंदा लोगों को क्या किया? मार दिया। तो मेरे अजीजों, हमारा बादशाह मरे हुए को जिंदा करता है, ना कि जिंदा लोगों को मारे। तो देखिए, इस बात दुनिया के बादशाह में क्या फर्क है? ये बादशाह जो है ये दुनिया जहां का बादशाह है, आसमान का बादशाह, जमीन का बादशाह और जमीन के रहने वाले को भी बादशाह। तो मेरे अजीजों, अगर आप बादशाह की पैरवाई करते हैं, अगर आप बादशाह को जानना चाहते हैं तो आप में भी सुलह सलामती का पैगाम होना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि अगर तेरे एक गाल में तमाचा मारे तो दूसरा भी। जब आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे तो फिर इस बादशाह की तरफ अपनी जिंदगी बसर करेंगे। इस कलाम की वसीला से खुदा आप सब लोग को बहुत ज़्यादा बरकत